Good morning, class. Today we start chapter 11, Algebraic Expressions and Identities. Algebraic Expressions and Identities. We know that expressions are formed from variable and constants. Variable who doesn't have a fixed values. वेरिएबल्स क्या होती है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है. इट टेक डिफरेंट वैल्यूज बट कांस्टेंट हैव अ डेफिनेट वैल्यू एंड कांस्टेंट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू which doesn't change the value of constant. Let's understand this with the general formula. This one is the general formula. We considered it. The general formula ax square plus by plus c is equal to a0. This one is the general formula of algebraic expressions. We understand this with the help of general formula. Ax square plus by plus c is equal to 0, in which x and y are variables. You know about that. X and y are variables. This one is a power, exponent और डिग्री. आप इसे कुछ भी बोल सकते हो. पावर, एक्सपोनेंट एंड डिग्री. विद वेरिएबल वी अप्लाई कोफिशिएंट्स. वेरिएबल्स के साथ क्या है बेटा? कोफिशिएंट्स. एक्स वाई या कोई भी और अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म हो तो वो क्या होता है हमारा? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के साथ क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स. एंड दिस वन इज कांस्टेंट who has a fixed value. Variable have not any fixed value, but constant have a fixed value. So this one is the general formula of algebraic expressions. Write on your front page when you start your chapter. Write the general formula. Now let's learn about monomial, binomial, trinomial and polynomial. Monomial is that if an expression contain only one term, अगर expression सिर्फ एक ही term contain कर रहा है, is called monomial. Mono का मतलब क्या है बेटा? Mono का मतलब ही one होता है. Bi का मतलब two. Tri means three and poly means more than three. Okay? Monomial, if an expressions contain only one term, अगर expression में सिंपल one term आ रही है, जैसे 7 is a one term, 4x square also single term, minus 2xyz is a single term, इसमें प्लस माइनस करके कुछ और ऐड नहीं हो रहा है. This one is monomial. Binomial having two terms. Expression contains two terms. That means 2x minus 5, देखो माइनस करके दूसरी टर्म ऐड हो रही है. 7xy plus 5 etc. Trinomial having three terms. Expression contains three terms. Example x plus y plus z. यहाँ पे देखो तीन टर्म्स आ रही हैं. 3x square minus 2y plus 5 also है. Also three terms. So this one is trinomial. Now polynomial and algebraic expression contain 1, 2, 3 or any number of term is called polynomial. One term भी हो सकती है, two term भी हो सकती है, three भी हो सकती है, more than three भी हो सकती है इसमें. Okay, this one is polynomial. Exercise 11.1. Fifth question, इसमें आपने classify ही करना है. Classify the polynomial as monomial, binomial, trinomial. देखो y plus z ये क्या है? टू टर्म्स आ रही है बेटा इसमें. दिया बाइनोमियल. 300 सिंगल टर्म में मोनोमियल.
3 टर्म्स, यहाँ देखो मोर देन 3 टर्म्स कंटेन हो रही है, दिस वन इज पॉलिनोमियल, सो इस तरह से आप इसे आइडेंटिफाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, एड द फॉलोइंग। वी लर्न अबाउट द एडिशन of algebraic expression in the previous class. So first part is xy plus yz, ये वन टर्म होगी बेटा, then xy minus yz, sorry zx, then zx minus of xy, इन्हें आप क्या करोगे, ऐड करोगे। Look at here, xy plus yz, ज़ीरो को बाद में लिख लेना क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक zx वाली भी है, तो यहाँ पे zx वाली नहीं थी, मैंने उसकी जगह 0 लिख दिया। नाउ xy, बेटा xy की टर्म में के नीचे xy वाली टर्म होनी चाहिए, yz की टर्म के नीचे yz वाली होनी चाहिए, एंड zx के नीचे zx वाली होनी चाहिए। आप इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो xy प्लस yz प्लस ऑफ 0 क्योंकि zx की टर्म नहीं थी, xy सेकेंड टर्म माइनस zx है, मैंने यहाँ yz की जगह छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे zx की जगह zx आना है, तो माइनस zx मैंने यहाँ लिख दी। नाउ माइनस xy प्लस ऑफ zx, तो ये भी जगह छोड़ दी zx, अब जो जगह मैंने छोड़ी थी उसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। आपको एडिशन करने में इजी हो जाएगा, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, सो ये zx क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये एज इट रहने दो। 1 माइनस का और 1 क्या हो गया, प्लस का xy, तो ये भी कैंसिल हो गए। आपके पास बचा क्या बेटा, xy प्लस ऑफ yz, दिस इज योर आंसर। दिस इज द अनदर वे ऑफ एडिशन। सेकेंड पार्ट इज l माइनस m प्लस lm, m माइनस n प्लस mn, n माइनस l प्लस ln। You apply any one way as you convenient. So this one is another way of addition. L minus m plus of lm, अब इन सब के बीच में मैंने एडिशन डाल दी क्योंकि ऐड कर रहे हैं हमें ना, हर एक को ब्रैकेट में रख के मैंने एडिशन डाल दी। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, L माइनस m प्लस ऑफ lm प्लस ऑफ m माइनस n प्लस mn प्लस n माइनस l प्लस ऑफ ln। नाउ अब यहाँ देखो एक l प्लस का है, दूसरा l जो है वो माइनस का है, l कैंसिल हो गए। एक m माइनस का है, एक प्लस का m है, ये m भी कैंसिल हो गए। एक n माइनस का है, एक n प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, lm mn प्लस ln, दिस वन इज द आंसर। पार्ट थर्ड, 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy प्लस ऑफ 4 5 प्लस 7xy प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। बेटा यहाँ देखो आपने 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3xy प्लस ऑफ 4 x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म लेकर आओ, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, xy के नीचे xy एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। इज इट क्लियर? नाउ ऐड करो 5 प्लस 4 9, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4xy, xy साथ रहेगा। नाउ 3 प्लस 2 5 x स्क्वायर y स्क्वायर। Do all the parts as it yourself of question number 6. Now question number 7 is subtract. Subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus of 3 from. From का मतलब इसमें से, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे। From 7x minus 4xy plus of xy square plus 5x minus 3y. फ्रॉम का मतलब आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करोगे, माइनस कर दो। लुक एट हियर, 7x स्क्वायर, अब सेकेंड टर्म जो फर्स्ट टर्म पे आएगी पहले इसे लिखेंगे, फ्रॉम है ना, 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y माइनस ऑफ, बाकी टर्म्स को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिया बेटो, आपको पता है जब माइनस कॉमन होता है ना, बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली साइन चेंज होती है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में रख लिया ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। नाउ जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये एज इट रहेगी टर्म, यहाँ से चेंज होगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4y स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 3. नाउ एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स देखो, 7x स्क्वायर, यहाँ 5x स्क्वायर. पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को देखें. प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 2x स्क्वायर. नाउ वाई स्क्वायर वाली टर्म को देखो, 8y स्क्वायर प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस 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 8 प्लस 4 12y स्क्वायर. नाउ एक्स वाली टर्म को देखो, 5x एज इट रहेगा, माइनस 4x वाली भी कोई और टर्म नहीं है, ऐसे भी लिख दिया. अब यहाँ देखो y वाली टर्म माइनस 6y माइनस ऑफ 3y, माइनस माइनस प्लस, यू हैव माइनस 9y. कांस्टेंट भी टर्म सिंगल है, सो +3. दिस वन इज़ योर आंसर.